अक्सर ऐसे लगता है कि स्कूटर्स को डिजाइन करना एक बहुत ही सिंपल काम है। इस सेगमेंट में इंजन, चैसी और परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम होते हैं, एज देयर प्राइमरी यूज विल बी फॉर कम्यूटिंग इन द सिटी। फिर भी एक स्कूटर को अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन करना कोई आसान काम नहीं है। महिंद्रा एक ऐसे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने अब तक ज्यादा सक्सेस नहीं देखा इन द स्कूटर सेगमेंट, लेकिन अब शायद ये सब कुछ बदल सकता है महिंद्रा के ऑल न्यू गस्टो के साथ। Now the Gusto is not Mahindra's first scooter, but this is the company's first all-new scooter since they bought out the scooter manufacturing unit of Kinetic Motors quite a few years back. Now Mahindra has been quite bullish about its two-wheeler business and it's achieved quite a bit of success with the feature-packed Centurion motorcycle. And the Gusto promises to be no different than that. In the cutthroat scooter market, in order to stand out, one has to really do something different, and that's what Mahindra has tried to do with the Gusto. पहली नजर पे श्योर गस्टो बाकी स्कूटर्स जैसी लगती है, इवन तो महिंद्रा कहते हैं that the Gusto was designed in Italy. ओवरऑल लाइन काफी कन्वेंशनल है और डिजाइन के तौर से महिंद्रा ने गस्टो पर एक ट्रेडिशनल अप्रोच रखा है, जिससे ये गस्टो काफी लोगों को अपील करेगी। इन एजी लाइंस के साथ महिंद्रा ने गस्टो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स और डिटेल्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये 4 वेंट्स आगे के फेयरिंग में, ये इंट्रिकेटली डिटेल्ड रियर फुटबोर्ड और ये नाइसली इंटीग्रेटेड रियर लाइट क्लस्टर। आगे के हेडलैम्प काउल में भी कुछ अच्छे टचेस दिए गए हैं, मेकिंग द गस्टो लुक क्वाइट गुड इन प्रोफाइल। बस ये नहीं, महिंद्रा ने गस्टो में एक यूनिक फीचर भी डाला है, जिससे गस्टो को चलाने में अलग अलग लोगों को आसानी होगी। Now to try and be different, most scooter manufacturers try to differentiate their scooters for men and women, usually based on different color choices or little tidbits here and there. But what Mahindra has done is built one scooter that fits them all, both men and women, and by that I mean people of different heights. This is the first scooter in the country, maybe even the world, to have a height adjustable seat, and it's very easy to operate. Check this out. So you pop the seat open, drop this little thing down here, and put the seat back. Now this seat is 40 millimeters lower than what it was before. Now that's some trick, isn't it? ऑन द मूव गस्टो के पावर और टॉर्क फिगर्स ऑन पार हैं बाकी के 100 सीसी स्कूटर्स के सामने। 8.16 PS ऑफ पावर और 8.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑफ कोर्स महिंद्रा ने काफी काम किया है टू इंप्रूव द राइडेबिलिटी ऑफ द स्कूटर। इंजन ब्रीथ करता है एक बड़े वेंचुरी कार्बोरेटर से और गस्टो में एक बड़ा डायमीटर क्लच भी है, जिससे ये स्कूटर काफी अच्छी तरह एक्सेलरेट करती है। इस M-Tech इंजन में रिफाइनमेंट बढ़ाने के लिए रोलर रॉकर आर्म्स और एक साइलेंट चेन का इस्तेमाल किया गया है और इसकी असलियत पता चलती है व्हेन ऑन द रोड। Now Mahindra has worked a lot in terms of how the Gusto rides, and by that I mean both engine as well as handling. The 110cc motor provides nice torque spread throughout the rev range, and even at speeds of about 70 or 80 kph, it doesn't feel too stressed. The mid-range is good, which means in traffic, in city, the bike accelerates very easily, and generally it's a pleasure to ride. In terms of handling, it's got big 12-inch wheels at the front as well as the back, and telescopic suspension at the front, giving this bike a very nice supple sort of handling that works well over most sort of surfaces, whether they're broken roads or good smooth tarmac. The handling also inspires confidence, and well, generally I think Mahindra has hit the mark on this one. गस्टो के राइडिंग डायनामिक्स को बेहतर करने के लिए महिंद्रा ने आगे टेलीस्कोपिक फ्रंट डैम्पर्स डाले हैं विद एयर वॉल्व्स विद 12-inch व्हील्स आगे और पीछे के लिए। इससे गस्टो को मिलता है 165 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जो इस क्लास में सबसे ज्यादा है। Add to that the long 1275 millimeter wheelbase, and what you get is one stable on-road performer. गस्टो को रोकने के लिए 130 mm ड्रम ब्रेक्स हैं आगे और पीछे, that too as a standard fitment. ब्रेक के फील में थोड़ी कमी लगी हमें, लेकिन ब्रेक का बाइट काफी अच्छा लगा। ये मॉडल महिंद्रा के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा अफ्रीका और साउथ एशिया के मार्केट्स के लिए, एंड वी आर श्योर दैट अ डिस्क ब्रेक विल आल्सो बी ऑन ऑफर लेटर।
माइलेज के हिसाब से ये M-Tech इंजन इस क्लास में काफी एफिशिएंट है। ARAI के मुताबिक गस्टो एवरेज माइलेज देगी ऑफ अराउंड 63.15 किलोमीटर्स पर लीटर। ये बात हम तभी कंफर्म कर पाएंगे जब गस्टो का फुल ऑन रोड टेस्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑफ कोर्स एक बात में गस्टो जरूर बायोस को इंटरेस्ट करेगी और वो है विद इट्स फीचर्स। गस्टो के लिए महिंद्रा ने एक फ्लिप की ऑफर किया है अलोंग विद फाइंड मी लाइट्स। हेडलाइट में हैलोजन बल्ब्स का उपयोग किया है अलोंग विद LED पायलट लैंप्स और निकनैक्स के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे ये कपी होल भी दिया है होल्डिंग अ मोबाइल फोन और अदर थिंग्स। महिंद्रा गस्टो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, द DX एंड द VX। DX बेस मॉडल रहेगा एट 43,000 रुपीज विद ऑल द गुडीज एक्सेप्ट फॉर द हाइट एडजस्टेबल सीट एंड फ्लिप की। टॉप एंड VX मॉडल में सारे गुडीज होंगे प्राइस्ड एट 47,000 एक्स शोरूम दिल्ली। There you have it, folks. That in a nutshell is the new Mahindra Gusto scooter. There's much to love about this bike, especially the seat, the little cubby holes, the way it rides, the smooth, creamy engine. I like the fact that Mahindra has focused on things that actually matter and made a scooter that actually differentiates itself from the rest of the market. Now, whether buyers are willing to buy it, that depends on two things: A, the pricing, and B, whether they're willing to look beyond the conventional. But I think there's great things in the future for this bike.